ایک چچا بھائی نے اپنے چچا بھائی کو اغوا کیا اور 50 لاکھ روپیہ تاوان مانگا. سب وسط کرتا تھا, کہاں دیکھتا چار آدمی وہاں وسط کرتا تھا. بس مجھے اغوا کروایا اس نے, جس سے اغوا کروایا وہ بھی ہمارے رشتہ داری تھے. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی یہ ایسا میرے ساتھ کرے گا, لیکن پھر بھی اس نے بہت گندا قسم کا کام کر دیا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید فصیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, اس میں ایک چچا بھائی نے اپنے چچا بھائی کو اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد مارنے کی دھمکی دی اور 50 لاکھ روپیہ تاوان مانگا. 50 لاکھ روپیہ تاوان نہ دینے کی صورت میں اس نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اس کو مار دے گا. آج اس سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں, اس اغوا کار سے بات کریں گے, جو اغوا ہوا اس سے بات کریں گے, اور پولیس نے اس کیس کو کیسے سالو کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت میں ملزم سہیل کے ساتھ موجود ہوں, اس سے بات کرتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے یہ سٹیپ کیوں لیا. سب وسط کرتا تھا, بس کہاں دیکھتا چار آدمی وہاں وسط کرتا تھا. بس بے عزت کرتا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اغوا کر لیں گے, اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے اور اس کو مارنے کی کوشش کریں گے. سر یہ ہماری سوچ تو نہیں تھی, وہ اگلا آدمی ہے جو اس نے یہ بری حرکت کر دی ہے. آپ نے ان سے 50 لاکھ روپے مانگے ہیں بھائی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. ہاں, وہ آدمی ہے نا جو اس نے میرے بھائی کے ساتھ 50,000 روپیہ مانگا, بولا اسے میں تھا اس آدمی کو, میں اسے اٹھائیں. یہ بات آپ نے اپنے چچا بھائی کو پکڑا, پکڑنے کے بعد لوگوں کو دے دیا, ان سے 50 لاکھ روپے مانگے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف بے عزت ہونے کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ آپ کو بے عزت کرتا تھا. میں نے پکڑا نہیں تھا, وہ پکڑ کے لے گئے. آپ نے صرف جو ہے وہ ان کو جو ہے بتایا کہ اس بندے کو لے کے جانا. ہاں بس. وہ بندے کدھر؟ وہ ہمارے مجھے پتہ نہیں ہے, خدا کی قسم سے مجھے نہیں پتا. آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو بتایا کیسے؟ اب نہیں نہ پتا, پہلے پتا تھا, اب نہیں پتا. پہلے پتا کیا تعلق کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ وہ ملزم ہیں, کیا کرتے ہیں پہلے؟ وہ کرتے ہیں اغوا برائے تاوان کا کام. انہوں نے بھن ساڑے نا پنڈ گئی. میرا ڈیٹا ویخ لو, صرف نا 20 دن سے ہماری جاری ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. ویسے کیا کرتے؟ ہم زمیندار. آپ زمیندار ہیں؟ ہاں. آپ نے زمینداری چھوڑ کے جو ہے وہ یہ والا کام شروع کر؟ بس غلطی ہو گئی سر, دوبارہ زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوگی. نہیں, یہ تو اب جو ہے وہ قانون کا کام ہے نا. جو ہو گئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی, دوبارہ ایسے غلطی نہیں کروں گا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچی ہیں. آپ کو یہ حرکت کرنے سے پہلے وہ بچوں کا نہیں سمجھ آئی کہ اب یہ بچوں کا کیا بنے گا, یہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ بس سر غلطی ہو گئی ہے. یہ میں اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگتا ہوں اور قانون سے بھی مانگتا ہوں, زندگی میں ایسا نہیں کروں گا. یہ تو ابھی آپ پکڑے گئے ہیں تو ابھی کہہ رہے ہیں نا, اگر نہ پکڑے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ مر جاؤں گا. یہ گندی حرکت کسی سے نہیں, نہ کسی کو کرنے دوں گا تو نہ خود کروں گا. یار یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے ابھی آپ معافی مانگ رہے ہیں, اگر آپ نہ پکڑے جاتے تو آپ نے 50 لاکھ لے کے جو ہے وہ عیاشی تو کرنی تھی نا. سر غلطی تو جو ہو گئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی, کیا کروں اب معافی وہ بھی معافی دے دیں اور قانون بھی معافی دے دے, میں یہی چاہتا ہوں. بس کس سے معافی مانگیں گے؟ ان کے بچوں سے معافی مانگیں گے, ان کے ماں سے معافی مانگیں گے, اور اس سماج سے معافی مانگیں گے, کس چیز سے معافی؟ میں سب پورے اپنے خاندان سے معافی مانگوں گا, بچے سے لے کے بوڑھے تک مانگوں گا. یہ عجیب مجرم جو ہے وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے, اور عجیب سی بات ہے کہ اب جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس سماج سے اور ان سب سے معافی مانگتا ہوں. میں اس وقت ابرار کے ساتھ موجود ہوں, جن کے چچا بھائی نے جو ہے وہ اغوا کیا تھا. ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا. ابرار صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے کزن نے آپ کو کیوں اغوا کیا؟ جیلس میں آ کر وہ کہتا تھا کہ تیرے پاس پیسے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں, میں تیرے کو تیری اوقات یاد کراؤں گا, ایسے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا. تو کبھی کبھی مجھے دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ تو ہے کیا, تو کچھ بھی نہیں, میں تجھے دیکھ لوں گا, اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اور اس نے موقع دے کر مجھے اغوا کروا دی. کبھی آپ کی پہلے لڑائی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ کبھی ہاتھا پائی ہوئی ہو, کبھی گالی گلوچ ہوئی ہو, کوئی اس طرح کا معاملہ؟ میری نہیں کبھی ہوئی, ویسے اس نے 2-3 بار میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ بندوں میں مجھے مطلب اپنے گھر بلا کر, اس کا نوکر ہے نا, اس نے بھی مجھے دھمکیاں دی تھی کہ میں ان کی وجہ سے چپ ہوں, ورنہ میں نے تجھے دیکھ لینا تھا. مجھے ایسا بولا اس کے نوکر نے. لیکن یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی اسے. ٹھیک ہے, میں نے بولا کہ لگتا تو آپ کا میں ہوں, لیکن آپ نوکر کی فیور کر رہے ہو. تو کہتے ہیں ہم کیا کریں, تو نہ ایسے باتیں کیا کر. میں نے بولا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس نے اغوا خود کیا آپ کو یا کروایا؟ نے مجھے اغوا کروایا اس نے, جس سے اغوا کروایا وہ بھی ہمارے رشتہ داری تھے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی یہ ایسا میرے ساتھ کرے گا, لیکن پھر بھی اس نے بہت گندا قسم کا کام کر دیا. آپ سے کتنا تاوان مانگا انہوں نے اغوا کرنے کے بعد؟ پہلے اس نے 50 لاکھ روپے مجھے بولا ہے, پھر وہ کہتا ہے چل 50 رہنے دے, 40 لاکھ دے دو. پھر کہتا ہے چل 40 نہیں 30 لاکھ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. تو میرے گھر والے بولتے ہیں یار ہم تو غریب بندے ہیں, ہم نہیں دے سکتے اتنے پیسے. وہ کہتا ہے, مجھے کہتا ہے میرے کان پٹی پہ ریفل لگا کے مجھے کہتا ہے نہیں
इतने पैसे तूने देने ही देने हैं तो हमने तुझे छोड़ना है। अगर ये खुद था वहाँ पे? ये नहीं था, किसने कान पट्टी पे रखी? कोई मतलब खान साहब थे, 3-4 बंदे थे, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। लेकिन मेरे सामने जो आते थे ना, वो मुझे उन्होंने मेरे चेहरे पे जो है ना वो मतलब कपड़ा डाल दिया हुआ था और मेरे हाथ जो है ना वो पीछे बांध दिए हुए थे और मुझे कहते थे अगर तूने इधर उधर देखा या कहीं भागने की कोशिश की तो हम तुझे मार देंगे। यहाँ पे कहीं पे करीब ही आपको रखा था या कहीं पे लेके गए थे? कहीं लेके गए थे इधर से। कितना सफ़र किया आपने, आपको कोई अंदाज़ा है? तकरीबन घंटा का सफ़र किया मैंने। आपको यहाँ से लेके गए तो किस तरह से उठा के लेके गए? आपको घर से बुलाया कैसे, जो है वो आप उनके हाथ कैसे आए? मैं ना बाहर दुकान पे गया हुआ था कुछ लेने, घर का सामान लेने। तो उधर ना हवेली में बैठे हुए थे दोस्त, वो कहते हैं इधर हमारे पास आकर बैठ। उनके पास गया तो एक लड़का बाहर से आया, मुझे कहता है ये तुझे ना कोई बंदा बाहर बुला रहा है। मैं बाहर गया हूँ तो बोलता है वो सामने जो गाड़ी है ना उस गाड़ी में बंदे तुझे बुला रहे हैं। मैं गाड़ी के पास गया तो वो कहता है साहब की बात सुनो, पीछे बारी खोल दी उसने, ऐसे कर दी पिस्टल उसने मेरे ऊपर जो है ना मेरे सीने पे रख दिया और मुझे कहता है चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैंने बोला सर मैंने क्या किया है, क्यों गाड़ी में बैठूं? इतने में जो फ्रंट सीट पे बंदा बैठा हुआ था ना उसने आकर मुझे पीछे से धक्का दिया और मुझे गाड़ी में ले गया। और उस टाइम में उसने मेरा मोबाइल, मेरे पैसे, मेरे ATM कार्ड थे मेरे पास, वो भी सब कुछ उसने ले लिया और मेरे हाथ जो है ना पीछे बांध दिए और मेरे ऊपर जो है ना कपड़ा फेंक दिया। वो और कहता है कि अगर तूने यहाँ से कुछ हिला विला या कोई बात की किसी से, कोई मतलब शोर शराबा किया तो हम तुझे मार देंगे। और मैं डर के चुप हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर जब ये कहीं ले गया ना मुझे दूर, तो वहाँ जाकर इसने एक गाड़ी से निकाल कर मुझे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया। पहले वाइट की गाड़ी थी जो इधर से मुझे लेके गई, आगे जाकर ब्लैक गाड़ी आ गई और उसकी गाड़ी की डिक्की में इसने मुझे डाला और फिर मुझे नहीं पता मुझे कहाँ ले गए। और फिर काफ़ी देर के बाद ना डिक्की से बाहर निकाला है, डिक्की से बाहर निकाल कर एक डेरे में ना मुझे छोड़ दिया। मैं चुप करके अंदर चला गया हूँ, मेरे हाथ ऐसे ही बंधे हुए थे, मेरे मुँह पर भी वो कपड़ा ही था, ठीक है। और मैं वहाँ पर बैठ गया हूँ और मुझे कहता है जिसने तुझे गवाह करवाया है ना, वो कहता था कि इसे ना रोटी देनी है ना पंखा लगाना है, इसको ऐसे ही बस रहने दो। लेकिन हम भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, हमने तुझे रोटी भी देंगे और तेरे ऊपर पंखा भी लगा कर रखेंगे, तू बस इजी रहो, मतलब आप बस पैसे दो और अपने घर जाओ। आपने कोई पैसे दिए भी उनको? हमने ना कुछ पैसों का इंतज़ाम किया था। वो कहते हैं कि अपने घर वालों से बोलो जो पैसे आपके पास इंतज़ाम हो गया वो हमें दे दें। उन्हें पता, इसने बता दिया जब उन्होंने पैसे लेने आना था ना, तो उन्हें पहले ही बता दिया था कि आप ना इधर आओ, इधर पुलिस यानी कि घर आ गई है इनके। उनको पता चल गया कि ये गवाह हो गया है और आज इसके पैसे लेने किसी ने आना है और वो फिर वो नहीं आए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे घर से वो पैसे ले आए हैं? वो कहते हैं नहीं हमने अभी नहीं लेके आए यार, सुबह जाएंगे। तो कितने पैसों का इंतज़ाम किया था आपने? हमने तकरीबन 10 लाख का इंतज़ाम किया था, लेकिन हमने उनको बोला हम 5 लाख रुपए आपको अभी देंगे। और लेकिन जब इन्होंने मुझे उठवा लिया तो 15 लाख रुपया मेरे घर वालों ने कहीं से ला के इधर उधर से बहन भाइयों से मांग के 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया था और 15 लाख रुपया आज इससे बरामद हो गया था। जब आपको ये लेके गए तो आपके पास कितने पैसे थे उस टाइम? मेरे पास 15,000 रुपया कैश थी और 27,000 रुपया मेरे ATM कार्ड में था, वो भी उन्होंने मुझसे ले लिया, वो पैसे भी निकलवा ले। और 15,000 रुपया जो मेरी जेब में था वो भी उन्होंने ले लिया। और 30,000 रुपये का मेरे पास मोबाइल था वो भी उन्होंने ले लिया। तो जब पुलिस वालों ने आपको बाजियाब करवाया, वहाँ से छुड़वाया, तो आपका सारा सामान जो है वो आपको एज इट इज़ वापस मिला? कोई चीज़ भी नहीं मुझे मिली, बस मेरी गाड़ी की चाबी और मेरी दुकान की चाबी मुझे मिली है। वो बंदे मिल गए हैं जिन्होंने आपको वहाँ से लेके गए थे, या सिर्फ आपका कज़न ही पकड़ा गया है? अभी मेरा कज़न ही सिर्फ पकड़ा गया, वो बंदे नहीं मिले। इनको पता बता दिया उसने। आपको कैसे पता लगा कि आपका कज़न इसमें इन्वॉल्व है? जो मुझे लेके गया था ना, इसने उससे कॉल की हुई थी और जब मेरे घर वालों ने इसका डाटा निकलवाया तो उन्हें पता चला कि इसने इसे उठवा दिया हुआ है। तो मेरे घर वालों ने इसे पूछा कि तुमने तो नहीं इसे गवाह करवाया? ये कहता है नहीं मैंने नहीं कुछ भी किया। मेरे भाई जो बाहर हैं उन्होंने इसको बोला था कि तूने ही गवाह करवा दिया, तो अभी भी उसको छुड़वा दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये कहता है मैं अल्लाह की कसम दूंगा मैंने नहीं ये गवाह करवाया। जब पुलिस वाले ने इसको बुलाया थाने, ठीक है, उसने बोला है कि सेल तुमने गवाह करवाया है? ये कहता है नहीं। जब उसने ज़बरदस्ती थोड़ा पूछा तो ये मान गया, हाँ जी मैंने ये गवाह करवाया है, फ़लान बंदा है जो ये उसका नाम है, उसके पास है वो। फिर पुलिस ने वहाँ रेड की तो वहाँ से मैं भी बरामद हो गया और मतलब उनके घर वालों को भी पुलिस ने उठवा कर ले आए। इब्रार की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जब इनका बेटा घर पे नहीं था तो इनको कैसा लगा और इनका तक खबर कैसे पहुंची? पता मैंने कोई पता नहीं, मैं बड़े जी बैठी रही हूँ,
जान होई नमाज पढ़ी है, फिर मैं बाहर निकली, फिर जाके पहले मैं अपनी गड्डी वेखी है, गड्डी वेख के फिर मैं इनू तिना घरां विचों ढूंढिया, फिर मैनूं नहीं लभा, फिर मैं आ गया ना ते जिक्र मावां करदियां ने फिर रोंदियां ने, इन मैं फिर रोन लग पई। माँ जी आपके पोते पोतियाँ भी हैं? जी 3 पोतियां ने 1 पोता है। इब्रार के बच्चे हैं ये? जी ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप तक ये खबर कैसे पहुंची? ये मैं बाहर गई तो मैनू लंबी हवा, फिर जरा आया उन्हें आख्या वो तेरा शामा नहीं बुआ हो गया है शामा, मैं कहा मैनू कोई। जब आपको पता चला है कि आपका जो है वो रिश्तेदार है जिसने ये सारा कुछ किया है, तो आपको कैसा लगा? मैनू पता कोई ये पता नहीं लगा ना, मेरे बच्चे मैनू दसिया, जरा बच्चा मेरा बाहर है ना उन्हें मैनू नहीं दसिया, ना ये भैन छोटी है तो उन्हें मैनू दसिया। मैं इस भाई से बंदी हमते सा इन्हें कोई बैठी रही सा शामा का, शामी इन्हें आखना रोटी खा, मैनू मैं आखना मैनू भुख कौन, मेरा मुंडे रोटी खा ली करनी मैंने, फिर जरा क लम्या पैर फिर उठ के मैं 5 दिन ना दिन आराम किया ना रात। क्या ख्यालात आते थे ज़हन में? इंजे आदि सा पता नहीं जे होंदा किधरे ते आ जांदा जां मैं और किधरे, ये मैनू कोई पता नहीं सी किने चुकिया ना, मेरे ज़हन में 40 साल मैनू भी ऐस पिंड होए ने, मेरे ना ये वजह काम होया ही नहीं सी, मैनू ये कोई पता नहीं सी किने कीता ते कितने बेटे हैं आप? 2 बेटे ने। एक इधर हैं एक बाहर हैं। जी तो माँ जी सोचा कि अब अगर ये इसको कुछ हो जाता तो वो मैं ये तो सोचती सा ना, मेरा बेटा जे जिंदा होता तो हूँ आ ही जाता, पर मेरा आता आ गई है, मेरा बेटा नहीं आया। ये 17 तारीख को रात तकरीबन 7:30 बजे का हुआ है। 18 तारीख को बंदे आए हैं हमारे पास, उन्होंने बताया सारा वक़ुआ कि इस तरह हमारा जो बच्चा है उसको किसी ने उठा लिया है। ये सुहेल नामी मुलज़म है, ये उनके साथ था, सुहेल नामी लड़का जो है ये उनके साथ था, ये मुदई बनना चाहता था। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा कि नहीं आप उसकी वालदा को बुलाएं, फिर उसकी वालदा को बुलाया गया और FIR दर्ज की गई। अगले दिन ही नेक्स्ट सुबह जो है उनको व्हाट्सअप, यूनान का नंबर था व्हाट्सअप पे, उससे कॉल आती है, एक पठान बोलता है, वो डिमांड करते हैं 50 लाख रुपए की। तो चूँकि ये बड़ा संगीन होता है अगवा बराए तावान, तो मैंने DPO साहब को और अफसरान बाला के नोटिस में दिया। उस वक्त से लेकर बरामद होने तक, जो मगवी है उसकी बरामदगी तक DPO साहब, मैं और मेरे DSP साहब ये बिल्कुल ऑनलाइन रहे हैं, और तमाम जो एफ़र्ट्स हैं वो हमने जो ज़मीनी और टेक्निकल जो एफ़र्ट्स हैं वो किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बच्चे को हमने विद इन 48 आवर्स रिकवर करवाने में कामयाब हो गए हैं। और साथ साथ जो अगवा की रकम थी, जो उन्होंने तावान की रकम 15 लाख पहले किस्त की सूरत में वसूल की थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर लिया। 50 लाख उन्होंने मांगा था और बाकी उन्होंने पैसे लेने थे आज नेक्स्ट संडे को। यूँ ही मुझे इस पे डाउट हुआ सुहेल पे, एक रात को इन्होंने तावान मांगा और इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए जो हैं वो फ़लाँ जगह पे रख दें, उसी गाँव में सूख कलां जहाँ से बच्चा अगवा हुआ था। तो चूँकि मैंने डिकाय ऑपरेशन करना था, मैंने उधर नफरी लगाई हुई थी और मैं मुदइयों के साथ अटैच था। उस रात मुदई को बाद में कॉल नहीं आई, मुझे डाउट हुआ कि कोई घर का फ़र्द जो है वो ज़रूर शामिल है। तो फिर मैंने इस पे मेरा डाउट किया, इसके नंबर की CDR वगैरह ली, इससे जो राब्ते में थे वकूए वाले दिन और बाद में उनकी CDR ली। फिर मैंने मैपिंग करवाई इसकी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो वो जो लड़का जैसे ये राब्ते में था उसका साबित हो गया कि वो उस रात 7:30 बजे 17 वाली रात जो है वो सूख कलां में मौका वारदात पे आया था। तो जब इसको पकड़ा तो इसके सामने मैंने वो सारा डेटा रखा, इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो डेटा इसके सामने गया तो इसको पसीने आने शुरू हो गए। फिर इसने इजीली अपना बयान दे दिया कि मैं इसमें शामिल हूँ, मेरे साथ फ़लाँ लोग हैं। तो फिर हमने उधर रेड करके उस बच्चे को भी रिकवर करवा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रकम भी जो है वो बरामद हो गई। जी 2 और मुलज़मान भी पकड़े गए हैं और बाकी की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। विद इन इंशाल्लाह फ्यू डेज़ वो भी इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में होंगे। जब इंसान का खून सफ़ेद हो जाए और उसका ज़मीर पैसों के आगे बिक जाए तो इस तरह के दिल खराश वाक़यात ज़रूर रूनुमा होते हैं। हसद एक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़वाती है, भाई को भाई से लड़वाती है और दोस्त को दोस्त से लड़वाती है।
یہی اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ آج آپ کو دکھایا. اپنے ہوسٹ سید فصیح الحسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.